ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ 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 میرا جذبہ تجسس سے انتقام پر غالب آنے لگا، اور میں اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح اس اسرار سے پردہ اٹھاؤں۔ اور پھر تم یہاں پھنسے۔ نہیں، پھنسا تو میں پہلے تھا۔ میں جان گرے کی طاق میں تھا، اور اس کے آدمیوں نے مجھے میرے 2 دوستوں سمیت اغوا کر لیا۔ ہمیں عمان میں ایک صحرائی مکان میں قید رکھا گیا۔ جان گرے وہاں مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ اس مکان میں ہم پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اس مکان میں ایک صحرائی بدو جو ان کا ملازم تھا، دراصل ان سے منحرف ہو گیا تھا۔ اسے ہم سے ملنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ جان گرے کا تعلق ایک مافیا ٹائپ کی تنظیم سے ہے جو علاقے میں مخصوص مفادات کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کا مقصد مقامی عرب اور مسلمان ریاستوں کو کمزور بنانا ہے۔ پھر اس بدو نے ہمیں وہاں سے نکل بھاگنے میں مدد کی، لیکن ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ جان گرے اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ اپنے ساتھ نیم مردہ حالت میں بدو کو بھی لائے تھے۔ اسے انہوں نے ہمارے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد مقابلے میں میرے دونوں دوست بھی مارے گئے۔ میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اس حالت میں کہ میرے جسم میں 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ پھر تم بچے کیسے؟ میں نے کہا۔ بس خدا کی قدرت کہہ لو، اسے میری زندگی مقصود تھی۔ جان گرے اور اس کے ساتھی شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں تھے کہ اچانک صحرائی ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ یہ کیڑے بادل کی طرح آئے اور ہر طرف چھا گئے۔ جانداروں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے، ہاں نباتات کو بالکل نہیں چھوڑتے۔ جان گرے اور اس کے بزدل ساتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ میرا تعاقب چھوڑ کر بھاگ نکلے، حالانکہ میں ان سے بمشکل 100 گز دور ایک ٹیلے کے عقب میں چھپا ہوا تھا۔ خون بہہ جانے سے میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ آگے جانے کے بجائے میں وہیں لیٹ گیا۔ میری خوش قسمتی کہ رات کو اس طرف سے خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ گزر رہا تھا۔ ان کے کتوں نے میرے خون کی بو سونگھ لی۔ قبیلے والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گولی کے زخموں کا یہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں، کیونکہ ان جنگ پسند قبیلوں کو آئے دن اس قسم کے زخموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ 1 ہفتے بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا تھا۔ تیسرے دن میں واپس اپنے گھر پہنچ گیا تھا، جبکہ گھر والے مجھے مردہ تصور کر چکے تھے۔ اس کے بعد سے ہم دونوں میں آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے۔ تم اس بوٹ تک کیسے پہنچے؟ اس بات کا سراغ بڑی مشکل سے ملا کہ خلیج کے پانیوں میں اکثر نظر آنے والی یہ بوٹ دراصل اس مافیا کی ہے، جان گرے جس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اور میرے کچھ ہم خیال دوست اس کے خلاف میدان میں اتر آئے تھے۔ اگرچہ ہم ان کے مقابلے میں وسائل سے محروم ہی تھے، لیکن ہمارے اندر ایک جذبہ تھا۔ میرے ایک دوست نے کسی ذریعے سے معلوم کیا کہ یہ بوٹ اکثر بحری قزاقی میں استعمال ہوتی ہے۔ حکومت سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علاقے میں کسی ملک کے بحریہ سوائے ایران کے اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان قزاقوں کا سد باب کر سکے، لیکن ایران کو سوائے اپنی سمندری حدود سے آگے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کے تجارتی جہاز بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ انٹرپول ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ انٹرپول، عبید صلاح ہنسا، یہ مافیا جن لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، اتفاق سے انٹرپول بھی انہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی اس مصروف سمندر میں انٹرپول کا گشت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا سارا زور بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمندر مغرب کے تجارتی مفادات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ گروہ عالمی طاقتوں کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ عبید صلاح نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلا اور ناشتہ لانے والا رات کا کھانا لے کر اندر آیا۔ یہ دبلا پتلا گہرے سانولے رنگ کا لڑکا شاید سری لنکن تھا۔ اس نے ٹرے ہمارے سامنے رکھ دی۔ مینیو وہی تھا، یعنی ابلے ہوئے چاول اور مچھلی، نمک اور مرچ کے بغیر بالکل پھیکے۔ میں نے دوپہر کو بھی یہ چاول اور مچھلی بمشکل ہی کھائے تھے۔ پھر کپتان صلاح الدین اور عملے کے دیگر افراد کی موت کی خبر نے میری طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، اس پر میرے حصے کا بھی عبید صلاح چٹ کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، یہ کمینے لوگ ہیں، کبھی دل نہیں کرتا تو پورا دن کھانا نہیں دیتے، لہذا جب کھانا ملے تو بلا تکلف کھا لو، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں نے عبید صلاح کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ مجھے احمد علی یاد آ رہا تھا جو بھوک کا بہت کچا تھا۔
जिसका बड़ा सा कुंबा था और वो इसका वाहिद कफील था। उसकी माँ और बहन भाई सारी उम्र उसकी रात तकते रहेंगे। मुझे गुप्ता याद आ रहा था, मजाक हंसी मजाक करने वाला, सबका दोस्त। उसकी बीवी एक बार फिर माँ बन रही थी और उसका बदनसीब बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। इराकी माज हुसैन, जो खुश्क मिजाज और खुरदरा था, लेकिन उसे अपने शिप से प्यार था। वो हर वक्त इसके लिए फिक्रमंद रहा करता था। कालबन समंदर में दोनों साथ ही साथ थे। खाना खाकर उबैद सलाह पैर फैलाकर खराटे लेने लगा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर पोर्ट होल से बाहर झांका। समंदर रात की तारीकी में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। अचानक मैंने इंजन की गुनगुनाहट में तब्दीली महसूस की। इसकी रफ्तार सुस्त हो रही थी। कुछ देर बाद वाज़ेह हो गया था कि बोट की रफ्तार मुसलसल सुस्त हो रही थी। क्या कोई मंजिल आ गई थी? मैंने सोचा और पोर्ट होल से बाहर झांकने की पूरी कोशिश की। महज 6 इंच के इस पोर्ट होल से मैं सर भी बाहर निकाल नहीं सकता था, लेकिन बिस्तर पर खड़े होकर मैं इस काबिल था कि किसी हद तक इसके दाएं बाएं नजर दौड़ा सकूं। बाहर अर्शे पर भाग दौड़ महसूस की जा सकती थी। अचानक बोट जरा सी डगमगाई और मैंने समंदर में जरा दूर एक स्याह लकीर देखी। क्या यह कोई जजीरा था या महज मेरा वहम? अब बहरी जहाज खासी सुस्त रवि से बल्कि फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था। इसके अगले अर्शे पर नस्ब सर्च लाइटें ऑन कर दी गई थी, इनका उजाला मुनाकिस होकर यहां तक आ रहा था। बाहर लहरें बड़ी हो गई थी। मुझे अंदाजा हुआ कि हम किसी साहिल के नजदीक थे, जहां समंदर के किनारे चट्टानें थी। इस किस्म का साहिल जो किसी कदर हिलाली शक्ल का हो, वहां बड़ी लहरें उठती हैं। यहाँ ज़ेरे आब चट्टानों की मौजूदगी ऐन मुमकिन थी। शायद इस बना पर बहरी जहाज को नहायत एहतियात से आगे बढ़ाया जा रहा था। मुझे हैरत थी कि क्या यहाँ कोई ऐसी बंदरगाह थी जो इस छोटे बहरी जहाज को संभाल सके। इसका वजन कम से कम 500 टन था। साहिल की लकीर अब मुझे बगैर किसी दिक्कत के नजर आ रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक यह तवील फासिल तक फैला हुआ पथरीला साहिल था, जिसके किनारे खासी बुलंद चट्टानों का एक सिलसिला था। अचानक बहरी जहाज ने अजीब सी हरकत की। वो घूम गया, जैसे साहिल के मुतवाजी होने की कोशिश कर रहा था। अब साहिल पूरी तरह मेरे सामने था। इसका घुमाव देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद ये जजीरा था। बहरी जहाज शायद फुट फुट करके आगे खिसक रहा था, और जब वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजरा तो मैं हैरान रह गया। इन चट्टानों के दरमियान इतना खला था कि जहाज जरा सा भी इधर उधर होता तो चट्टानों से टकरा जाता। इनके दरमियान से इस जहाज को गुजारना बिलाशुबा महारत का काम था। अब जहाज एक मुख्तसर सी खलीज में था, जहाँ पानी बिल्कुल पुरसकून था। इससे अंदाजा हो रहा था कि यह जगह बाकी समंदर से अलग थी, शायद चारों तरफ से घिरी हुई, और इसमें दाखिले का रास्ता सिर्फ वही था जहां से बहरी जहाज गुजर कर अंदर दाखिल हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। जहाज एक बार फिर सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था। तारीकी शदीद हो गई थी। तब कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर बादल आने से तारों की मामूली सी रोशनी भी खत्म हो गई। मैं पोर्ट होल से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर जहाज की रोशनियां भी बुझा दी गई थी। जहाज तो रुक गया था। अचानक एक झटका सा लगा था और इसने एक और गैर मामूली हरकत की, यानी आगे या पीछे जाने के बजाय दाएं तरफ जाने लगा। मैं दंग रह गया। जहाज इस किस्म की हरकत कर ही नहीं सकते। चंद लम्हे बाद मेरी समझ में आ गया कि जहाज को किसी किस्म के मैकेनिज्म की मदद से खींचा जा रहा था। दुनिया की बाज़ मुख्तसर सी बंदरगाहों में इस किस्म के मैकेनिज्म होते हैं, जिनकी मदद से बहरी जहाज़ों को बंदरगाह लाया या निकाला जाता है। जहाज क्योंकि बाएं समत में खींचा जा रहा था, इसलिए मैं देख नहीं सका कि हम कहाँ जा रहे थे। अचानक जहाज एक धचके से रुक गया। तारीकी का एहसास शदीद हो गया था, जैसे हम किसी बंद जगह पर आ चुके थे। इसके साथ ही बाहर चहल पहल की आवाजें आने लगी थी। साथ ही सामान रखने, उठाने और घसीटने की आवाजें भी आने लगी। मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरा अंदाजा था कि बोट ने जनूब मगरिब की समत कोई 20 घंटे मुसलसल सफर किया था और इसकी रफ्तार 20 नाट फी घंटा रही थी। गोया हम कोई 400 मील के फासले पर आ चुके थे। जहां खलीज को तूफान के दौरान में लंगर अंदाज किया गया था, वो जगह बम्बई से कोई 150 नाट के फासले पर जनूब मगरिब में थी। गोया जगह सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल के आसपास थी। मुमकिन तौर पर कोई जजीरा था। अगर ये बहरी कज़ाकों का मरकज था तो खासी ताज्जुब की बात थी। वो एक बैनुल-अक़वामी बहरी शाहराह के खासे नज़दीक थे, जो ईरान, बरसगीर और अरब ममालिक को अफ्रीका से मिलाती थी। इनकी दीदा दलेरी हैरत अंगेज थी। रात भर जागने के बाद मुझे ऊँग आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। न जाने कब क्या सूरत हाल पेश आ जाए। मैं चौकन्ना रहना चाहता था ताकि बेखबरी में मारा न जाऊं। मैंने पिस्तौल को अपनी यूनिफॉर्म में पतलून में कमीज के नीचे से निकालकर दाएं पैर के मोजे में उड़स लिया था। तलाशी के दौरान यहाँ इसके छिंचाने के इम्कानात कम थे। मुझे ये भी ताज्जुब था कि इस बोट पर किसी ने मेरी तलाशी लेने की ज़हमत गवारा नहीं की थी, और पिस्तौल अब तक मेरे पास था। अगर मौका मिलता तो मैं 9 अफराद को जहन्नुम रसीद कर सकता था, जिनमें सर फहरिस्त जान गरी का नाम ही होता। मगर मसला ये था
कि मैं 9 अफराद को मार कर भी यहाँ से फरार नहीं हो सकता था। अव्वल तो वो मुझे फरार होने ही ना देते, और अगर किसी तरह मैं कश्ती से निकल भी जाता तो आगे समंदर में कहाँ जाता। फिल वक्त मैं देखो और इंतजार करूँ की पॉलिसी पर अमल कर रहा था। मुस्तकबिल मेरे लिए न जाने क्या लाने वाला था। मुझे शायद ऊँग आ गई थी जब खटके ने मुझे चौंका दिया था। दरवाजे पर रात वाला गार्ड खुशमगीन नजरों से मुझे देख रहा था। उठ जाओ, उसने गुर्रा कर कहा, तुम लोगों के फैसले का वक्त आ गया है, उठाओ इस लार्ड साहब को। मैं जाग रहा हूँ, उबैद सलाह ने उछल कर बैठते हुए कहा। ये काले मुंह वाला बंदर क्या बकवास कर रहा है? इस किताब पर हबशी गार्ड ने खूनखार नजरों से उसे देखा। बहुत चहक रहे हो, अभी सारी बकवास निकल जाएगी, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मैंने उबैद सलाह को समझाया। मेरा ख्याल है ये तुम्हारे शयान चांद नहीं है, इसने मुंह बनाया। मैं इन्हीं कुत्तों से ज्यादा अहमियत नहीं देता जो अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर भौंकते और काटते हैं। स्याफाम गार्ड ने अपना पिस्टल उबैद सलाह की तरफ सीधा किया और दांत पीस कर बोला, लगता है तुम अभी मरना चाहते हो, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मुझे उसके अंदाज से लगा कि वो सचमुच गोली चला देगा और उबैद सलाह मारा जाएगा, जो बेखौफी से उसके सामने सीना ताने खड़ा था। मैंने उसे झिड़क दिया, खामोश रहो, ये अपनी ड्यूटी से मजबूर है, दुनिया में हर फर्द मजबूर है। मेरी बात ने गार्ड के तने आसाब को किसी कदर ढीला कर दिया था और वो कातिल लम्हा गुजर गया जब वो टैगर दबाकर उबैद सलाह को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन उसके गुस्से में कमी नहीं आई थी। कीना परवरी में वो किसी तरह जानगरे से कम नहीं था, फर्क सिर्फ जिल्द की रंगत का था। इसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ था। उसने हमें बाहर आने का हुक्म दिया। बाहर उसके साथ 2 अफराद और मौजूद थे। उन्होंने हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। खास किस्म के लचकदार मटेरियल से बनी यह हथकड़ियां मजबूती के मामले में फौलाद से कम नहीं थी। किसी भी इंसान के लिए इन्हें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। बाहर दिन निकल चुका था। खमरशे पर आए। मैंने चारों तरफ देखा और इस बर्थ की साख्त देखकर हैरान रह गया। ये चट्टानों का एक तवील सिलसिला था जिसके किनारे काट कर बर्थ बनाई गई थी। यहाँ पर पानी इतना गहरा था कि इतनी बड़ी कश्ती आराम से लंगर अंदाज हो गई थी। मेरा अंदाजा था कि इसमें कई बड़े बहरी जहाज आसानी से आ सकते थे। बर्थ इतनी तवील थी कि इस पर इस जैसी कई कश्तियां लंगर अंदाज हो सकती थी। लेकिन मसला यह था कि इसके सामने पानी इतना फैला हुआ नहीं था कि कोई भी बड़ी जसामत की कश्ती अज खुद लंगर अंदाज हो सकती। इसके लिए मैकेनिज्म का तरीका अपनाया गया था। कोई भी बहरी जहाज इसकी मदद से खींचकर बर्थ तक लाया जा सकता था और इस मैकेनिज्म की मदद से इसे बाहर भी निकाला जा सकता था। सबसे हैरत अंगेज चीज बर्थ के ऊपर की चट्टान थी जो किसी छज्जे की तरह तकरीबन 20-25 गज ऊंची थी। इस छत ने इस मुख्तसर सी बंदरगाह को बिल्कुल छुपा दिया था। फिजा से इसका देख लिया जाना कतई नामुमकिन था और समंदर से भी इसे सिर्फ उस वक्त देखा जा सकता था जब देखने वाला खलीज में मौजूद हो। खुले समंदर से नजारे में दरमियान में बुलंद चट्टानें आ जाती थीं जिन्होंने चारों तरफ से खलीज को घेर रखा था। बर्थ पर इस जैसी 2 और कश्तियां मौजूद थी और वहां खासी रौनक थी। नीली वर्दियों में मलबूस कारकुन मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे और हर कारकुन के सीने पर एक कार्ड लगा था जिसमें उसकी तस्वीर और नाम वगैरह था। काल्बन इसका मकसद किसी अजनबी शख्स को इस जगह आने से रोकना था। कुछ अफराद दीगर रंग की वर्दियों में थे। ये शायद आला ओहदेदार थे। खास बात ये थी कि सारे ही सफेद फाम थे, जबकि नीली वर्दी में अक्सर अफराद रंगदार लोग थे। मुसल्ला गार्ड जो सब्ज रंग की वर्दियों में थे और कहीं कहीं नजर आ रहे थे। अलबत्ता सफर के दौरान इन्होंने आम कपड़े पहन रखे थे। खास बात यह थी कि वहां कोई भी फर्द सादा लिबास में नहीं था, मेरे और उबैद सलाह के अलावा। नीचे उतरो, चाफाम गार्ड ने कहा। करीब से देखने पर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। बर्थ कुदरती नहीं थी, बल्कि इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया था। मुमकिन है ऊपर बना कुदरती छज्जा इतना बड़ा ना हो, लेकिन बर्थ के लिए चट्टानों को काटने के बाद ये अज खुद बड़ा हो गया था। पत्थर काट कर सिर्फ बर्थ ही नहीं बल्कि अंदर हाल भी बनाए गए थे जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। बर्थ पर कई करेनें नस्ब थी जो सामान उतारने चढ़ाने का काम कर रही थी। हम करेटों के एक ढेर के पास से गुजरे जिनसे बू उठ रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इनमें शराब थी। ये शायद इर्द गिर्द के ममालिक को स्मगल की जाती होगी, क्योंकि सिवाय भारत और श्रीलंका के खित्ते के किसी मुल्क में शराब की आज़ादी नहीं थी। लामुहाला ये स्मगल होकर वहां जाती है। इससे जरा आगे इस सामान का ढेर लगा था जो खलीज से ताकत के जोर पर हासिल किया गया था। इस सामान के लिए 30 अफराद अपनी जान से गए थे। मुझे शुबा था कि जान गरे ने इन्हें सिर्फ इंतकाम लेने के लिए हलाक किया था, बल्कि खलीज की तबाही की असल वजह चाहिए थी कि इनकी कज़ा की छुपी रहे। कप्तान सलाहुद्दीन और जान गरे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से यह तासुर भी मिलता था कि इस खित्ते में सफर करने वाले बहरी जहाजों के लिए कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी वो इन कज़ाकों के हाथों लुटते रहे थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर लुटने वाले बहरी जहाज और इनकी कंपनियां इन वाकयात की रिपोर्ट नहीं करती थी। बर्थ से उतरकर हम एक पक्के रास्ते से गुजरते हुए एक हाल तक पहुंचे। ये सब उस चट्टानी सिलसिले के अंदर था जो किसी बड़ी पहाड़ी का एक हिस्सा था
लेकिन इस तरफ से इसके वुसअत या गहराई के बारे में अंदाजा लगाना कतई नामुमकिन था। फिर ये भी मालूम नहीं था कि इन चट्टानों के अक्म में क्या था। हाल में कई खाड़ियां खड़ी थीं। ये सब छोटी साख्त की जीपें थीं। हर जीप पर 4 अफराद सफर कर सकते थे। मुझे और उबैद सलाह को एक जीप पर सवार होने को कहा गया। जब हम इसके अकबी हिस्से में बैठे तो हमारे हाथ में लगी हथकड़ियों को जीप के लगे हुक्कों में लाक कर दिया गया, गालबन इस बिना पर कि हम रास्ते में कोई शरारत न कर सके। हाल के दूसरे सिरे पर सुरंग जा रही थी। अभी हम रवाना हो रहे थे कि सुरंग से ऐसी ही एक जीप निकली। गोया ये सुरंग ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जीप छोटी होने के बावजूद ताकतवर और बर्क रफ्तार थी। सुरंग चट्टानों को काट कर बनाई गई थी और इतनी कुशादा थी कि 2 जीपें आराम से पहलू ब पहलू चल सकती थी। अंदर ही 10 गज के फासले पर दीवारों के साथ ताकतवर लाइट्स नस्ब थीं। इनकी रोशनी में सुरंग का एक एक हिस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। अंदर घुटन का एहसास नहीं था। इसका मतलब था कि इसमें ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखा गया था। जीप से उतार कर हमें पैदल हाल या गार के बाहर लाया गया था और मैं एक बार फिर हैरान हुआ। पहली बार मुझे इस खुफिया बंदरगाह ने हैरान किया था तो दूसरी बार मुझे चट्टानों की दूसरी तरफ के नज़ारों ने हैरान कर दिया था। हम बुलंद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में खड़े थे। यहाँ मुझे दुरुस्त तौर पर मालूम हो गया कि हम एक जजीरे पर ही थे। कई समतों में बाइद फासले पर समंदर अपनी झलकियां दिखा रहा था। हम सतह समंदर से कोई 2000 फुट की बुलंदी पर थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि सुरंग इस कदर बुलंदी पर जाकर निकलेगी। ये शायद सुरंग की साख का कमाल था कि मुझे जीप की बुलंदी की तरफ जाने का एहसास नहीं हुआ था। नीचे का मंजर इतना सहर अंगेज था कि आदमी खोकर रह जाए। इस तरफ बेहद घना जंगल था जिसमें बेशुमार अकसाम के बुलंदोबाला दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों पर बेलें चढ़ी हुई थी। जंगल के दरमियानी हिस्से में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। शायद इस तरफ पानी का कोई जखीरा था जिससे सुबह सवेरे भाप उठ रही थी। जंगल के बाद सरसब्ज पट्टी के साथ बेशुमार मकानात नजर आ रहे थे। इतनी दूर से ये खिलौनों जैसे लग रहे थे। आबादी का ये सिलसिला साहिल से थोड़ा दूर तक फैला हुआ था। एक अच्छा भला कस्बा था। स्याफाम गार्ड ने कहा, खड़े क्यों हो, चलो। पैदल? उबैद सलाह ने फिक्र से कहा। नहीं, तुम्हारे लिए रोलर राइस आएगी, गार्ड ने मज़क्का उड़ाते हुए कहा। पैदल चलो, लाड की औलाद है, चलो। उबैद सलाह ने शाने उचकाए। लेकिन रास्ते में मैं भाग निकला तो शिकवा मत करना। मैं इस बात पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। वो इस हालत में भी जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहा था जबकि इसके चारों तरफ इसके खून के प्यासे दुश्मन थे और बचने की कोई राह नजर भी नहीं आती थी और ना ही फरार की तरकीब। हमने इस मुख्तसर सी सड़क पर मार्च शुरू कर दिया जिसके किनारे घने और बुलंद दरख्त उगे हुए थे। जो जगह दरख्तों से बच गई थी वहां रंग बिरंग फूलों के पौधे थे। हम तकरीबन निस्फ घंटे बाद नीचे आबादी के करीब पहुंचे तो वहां मशरकी सम से एक खुली जीप में चंद अरब गुजरे। उन्होंने कीमती लिबास पहन रखे थे और उनके हुलिये से अमारत टपक रही थी। इस जजीरे पर इन अरबों की मौजूदगी मेरी समझ से बाहर थी। ये भी मुमकिन था कि ये अरब त्यारे में आए हों। इन अरबों का इस जजीरे पर क्या काम था? वो किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह आए थे। इनकी जीप को एक मकामी कारकुन ड्राइव कर रहा था। उसने नीली वर्दी पहन रखी थी। अरब बेहद खुश थे और हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे। इन्हें देखकर उबैद सलाह की आंखों में गुस्सा चमकने लगा था। उसने नफरत भरे अंदाज में जमीन पर थूका। आगे चलो। अकब से गार्ड ने उबैद सलाह की कमर पर राइफल की नाल मारी। कुछ देर बाद हम खारदार तारों से घिरे एक अहाते में दाखिल हुए जिसके वसत में मुख्तलिफ बैरकें बनी हुई थी। यह जगह कोई कैद खाना मालूम होती थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। पहले हमें एक सफेद फाम शख्स के सामने पेश किया गया जो जेल का इंचार्ज साबित हुआ। कसरत मैनोशी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और गालों का गोश्त लटक आया था। वलिये से कोई बुल डाग लग रहा था। कौन है ये? उसने गुर्रा कर कहा। जान गिरे इन्हें पकड़ कर लाए हैं, स्याफाम मुहाफिज ने अदब से कहा। इन्हें अगले हुक्म तक यहाँ कैद रखने को कहा गया है। यह सुनते ही उसका चेहरा बिगड़कर मजीद बदसूरत लगने लगा था। उसने खुद मुझसे क्यों नहीं कहा? यह बात तो वही जाने जनाब। मुहाफिज यकदम खाइफ नजर आने लगा था। तो तुमने उस खंजीर की तवज्जो क्यों नहीं दिलाई? जेल इंचार्ज ने अचानक उठकर मुहाफिज को पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। वो ताकतवर आदमी था। स्याफाम वजनी और मजबूत होने के बावजूद लड़खड़ा कर पीछे चला गया। इसका स्याह चेहरा मजीद तारीक हो गया था लेकिन इस बेइज्जती पर उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। उबैद सलाह हकारत से उसे देख रहा था जबकि मेरे ख्याल में इंचार्ज ने दरअसल हमें मरूब करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा ख्याल गलत था। उसकी खबासत से अभी हमें वास्ता ही नहीं पड़ा था। सॉरी डियर डॉन, स्याफाम मुहाफिज ने कहा। वो मुस्कुराने लगा। मैं जरा नए कैदियों से अपना तारुफ करा दूं। लेकिन ग्रेस साहब, स्याफाम ने कहना चाहा। पहाड़ में जाए तुम्हारा ग्रेस साहब, उसने धाड़ कर कहा। और तुम भी दफा हो जाओ। स्याफाम गार्ड अपने साथियों समेत दफा हो गया। इंचार्ज के घंटी बजाते ही 2 मुसल्लह अफराद अंदर आ गए थे। टियरडान ने उन्हें हुक्म दिया, इन्हें मैदान में ले चलो। मैदान बैरकों के अकबी हिस्से में था
लोहे के पाइपों से बने हुए झूले नुमा साख्त के नमूने खड़े थे, जिनसे लोहे की जंजीरें लटक रही थी। इनकी कमीजें उतार दो, टियरडान ने अपने आदमियों को हुक्म जारी किया। तब मेरी निगाह उसके हाथ में सांप की तरह बलखाते हंटर पर पड़ी। अगले ही लम्हे में समझ गया कि हमारे साथ क्या होने वाला है।